Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So all of you, open your textbook. So now we will see what you had learned our last classes. So student, all of you know very well what you had learned our last classes. First, you had learned about the half. What is the half? Some things when something divide into the two equal parts. When one things we are divided into the equally parts, they are called the half. उसको क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं. और वो कैसे लिखते हैं? 1/2. 1/2 मीन्स हमने क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एक पार्ट्स को. सो ये हो गया, ईच पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. सो दिस इज हाफ. देन क्वार्टर. What is the quarter? When we are divide one things into the equally 4 parts. किसी थिंग को हम कितने में पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्टर. और उसका ईच पार्ट क्या होता है? 1/4 होता है. मतलब look at here circle. That circle is divided into the equally 4 parts. उसमें से ये जो 1 पार्ट्स होता है वो 1/4 होता है. क्या होता है? 1/4 होता है. सो दिस इज द क्वार्टर. सिंपल, वी गेट द 2/4. जब हम 2 पार्ट्स को लेते हैं तब क्या बनता है? 2/4 बनता है. 3 पार्ट्स को लेते हैं तो 3/4 बनता है. क्या बोलता है? बनता है 3/4. मतलब total numbers of equal how many part? Total numbers of equal 4 part. From the 4 parts we have taken the 3 parts, means 3/4, 3/4 बोलते हैं उसको. So this is quarter. Then after we had learned exercise 8.2. Now next we had learned the 1/8. What is the 1/8? When we are divide one things into the equally 8 parts. Equally 8 part. सो 1 पार्ट्स, किसी थिंग्स को हमने इक्वली कितने पार्ट्स किए हैं? 8 पार्ट्स के. तो उसमें से 1 पार्ट्स हमारा क्या बन जाएगा? 1/8 बन जाएगा. 2 पार्ट्स 2/8 बन जाएगा. 3 पार्ट्स 3/8 बन जाएगा. 4 पार्ट्स 4/8 बन जाएगा. 5 पार्ट्स लेंगे तो 5/8 हो जाएगा. 6 पार्ट लेंगे तो 6/8 हो जाएगा. 7 लेंगे तो 7/8 जाएगा. 8 लेंगे तो 8/8 हो जाएगा. सो दिस इज द 8. Then after we had learned exercise 8.3. Then after next we had learned the some other fraction. So here we had learned the, now look at here. Here have one diagram. That circle how many equal parts of the circle? Here have 6 equal parts of the circle. From the 6 parts, how many parts is shaded? 1 parts are the shaded. So 1 parts is shaded means downside we are writing the how many equal parts? 6 parts. From the 6 part 1 parts is the shaded means 1/6 और इसको हम 1/6 भी बोलते हैं. 1/6 और 1/6. Then next is the, now look at here. Here also have one circle. That circle is divided into the equally 5 parts. From the 5 parts 1 part is shaded means 1/5. 2 parts shaded means 2/5. 3 parts shaded means 3/5. Suppose 4 parts are shaded, so 4/5. Suppose 5 total parts are shaded means 5/1 और उसको 1 भी लिख सकते हैं. मतलब पूरे जितना भी पार्ट्स है उसको सर्कल शेडेड किया है, मतलब वो क्या हो गया? 5/5. 5/5 मतलब 5 1 7, 5 1 7, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा? 5/5 मतलब 1 होता है. So this is our 1/5, 2/5, 3/5. Then same here, look at here. I have do there equally divided into the 7 parts. हमने एक क्या किया है? इक्वली 7 पार्ट्स किया है. उसमें से 1 पार्ट्स को हमने शेडेड किया है, मतलब वो क्या हो जाएगा? 1/7. सपोज 2 पार्ट्स आर शेडेड, सो 2/7. 3 पार्ट्स शेडेड, सो 3/7. 4 पार्ट्स शेडेड, सो 4/7.
अप टू 7th हम इसको शेडेड कर सकते हैं। देन सेम लाइक दैट 9 पार्ट्स है, 9 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है तो वो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। 2 पार्ट्स को शेडेड किया है तो 2/9 हो जाएगा। 3 पार्ट्स को शेडेड किया है तो वो 3/9 हो जाएगा। 3/9 भी बोल सकते हैं उसको। देन नेक्स्ट वी हैड लर्न द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसको न्यूमरेटर बोलते हैं और किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं? डिनोमिनेटर को बोलते हैं जो हम इक्वली पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, वो हम नीचे लिखते हैं। इट इज नंबर ऑफ इक्वल ईच पार्ट इनटू द होल इज डिवाइड। जितने हमने टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए वो हमने नीचे लिखे, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। 4 is the numerator of the fraction, it is the number parts और taken। और जितने पार्ट्स हमने टेकन किए लिए हैं वो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर, वो हम ऊपर लिखते हैं, तो 4/11। So this is numerator and denominator. Then after we had learned the exercise 8.4. Then after we had learned exercise 8.5. Then fraction on a given length. So look at here, the length of AB is divided into the equally 4 parts. Now look at here, AB that divided into the equally 4 parts. One part is shaded. One part shaded. What is the fraction of whole shaded? 1/4. Total numbers of 4 parts. From the 4 parts, 1 part is the shaded, means 1/4. 1/4 equal to AC. AC equal to 1 and AB equal to 4. So AC divided by AB equal to 1/4. So AB means total numbers of parts and AC means that parts is shaded. So AC equal to 1 and AB equal to 4. So this is the fraction is given in the length. Then after we had learned the exercise 8.6. Then after we had learned the fraction wall. So now look at here. Now look at here, some here have a wall. Okay, wall have, और यहाँ पे क्या है ब्रिक्स है। पहले इसमें क्या है वन होल, क्या है ब्रिक्स है, क्या है वन होल ब्रिक्स है। फिर यहाँ पे क्या है कितने ब्रिक्स है 2 ब्रिक्स है। सो 2 ब्रिक्स लगाइए तो 1 ब्रिक्स क्या हो जाएगी 1/2 1/2। अगर दोनों को मिलाएंगे 1/1 1/2 1/2 को तो ये हमारा 1 होल बन जाएगा। देन यहाँ पे 3 ब्रिक्स है तो यहाँ पे क्या देखा है हमने, क्या किया है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा है, और वो ईच ब्रिक्स को क्या लिखेंगे 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स में लिखेंगे। ये 1/3 1/3 को 3 टाइम्स मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। देन डाउन साइड लुक एट हियर, यहाँ पे कितने ब्रिक्स है टोटल नंबर्स ऑफ 4 ब्रिक्स है। अगर हम 4 ब्रिक्स को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगी 1 ब्रिक्स बन जाएगी। देन 5 ब्रिक्स, टोटल नंबर्स ऑफ कितने ब्रिक्स है 5 ब्रिक्स है। 1 ब्रिक्स कितना है 1 ब्रिक्स 1/5 है। अगर हम 5 ब्रिक्स को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज द, यहाँ पे कितने ब्रिक्स है 6 ब्रिक्स है। अगर हम 6 ब्रिक्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 ब्रिक्स क्या है 1/6 है। देन 7 है, 7 ब्रिक्स को हम साथ में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 ब्रिक्स क्या है 1/7 है। देन यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे कितने ब्रिक्स है 8 ब्रिक्स है। टोटल नंबर्स ऑफ 8 ब्रिक्स है। 1 ब्रिक क्या है 1/8 है। अगर हम सभी ब्रिक्स को साथ मिला देंगे तो 1 ब्रिक बन जाएगी। फिर यहाँ पे कितने ब्रिक्स है, यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ 9 ब्रिक्स है। 1 ब्रिक इज द 1/9 है। अगर सभी ब्रिक्स को साथ मिला देंगे तो कितने ब्रिक्स बन जाएगा 1 ब्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं 10 है। 10 ब्रिक्स है। टोटल नंबर्स ऑफ 10 ब्रिक्स है, सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 1 ब्रिक बन जाएगा। ठीक है। सो जब ऑल ऑफ यू लुक एट केयरफुली, जब क्या हो रहा है एक एक ब्रिक को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे, मतलब जैसे यहाँ पे 1 है, पहले 1 है तो ये पूरा है। जैसे हमने 1 को 2 में डिवाइड किया तो ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया। जैसे जैसे हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज कैसे होता जा रहा है छोटा हो जा रहा है। क्या हो रहा है छोटा हो जा रहा है। तो क्या होता है ऑल्सो यू लुक एट वर्टिकल लाइन्स, यू सी दैट 1/3
1/3 लेस देन 1/2। 1/3 क्या है, 1/2 से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि लुक एट हियर 1/2 में क्या है, 2 ब्रिक्स और यहाँ पे 3 है, तो इससे इसकी देखो, इसकी और इसकी साइज देखो, दोनों की साइज देखो, इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई इसके कंपैरिजन में। तो जब हम 1/3 है वो क्या है, लेस है 1/2, बट 3 इज ग्रेटर देन 2, बट 3 क्या है, ग्रेटर है 2 से। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है। क्या होता है, वो छोटा नंबर होता है। एज अ डिनोमिनेटर इंक्रीज, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, द फ्रैक्शन बिकम अ स्मॉल, वैसे वैसे फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या है, जब क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 1/3 और 2/3 होता, क्या होता है, 1/3 और 2/3 है। अभी दोनों का देखो, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, उस साइड 2 ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1/2, 1/3 इज लेस देन 1/3 लेस देन 2/3। 1/3 ये 2/3 से क्या है, छोटा है। 1/3 स्मॉल देन 2/3, 2/3 से ये छोटा होता है। देखो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तब एज इट इज, जैसे हमारा जो बिगर नंबर रहते हैं उसको हम साइन देते हैं वैसे ही देना पड़ता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर चेंज होता है, अलग रहता है, तब जो नंबर छोटा है वो बड़ा हो जाता है। देन कंपेयरिंग फ्रैक्शन, वी हैड लर्न द कंपेयरिंग फ्रैक्शन। सो ये जो मैंने अभी बताया वैसे ही है, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लुक एट द फिगर, दे शो द फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर सबके अलग है तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो ग्रेटर नंबर ये क्या होता है, वो ग्रेटर फ्रैक्शन रहता है। सो दिस इज द कंपेयरिंग फ्रैक्शन। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 8.7। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे टोटल नंबर्स आप दोनों में कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, हमने 4 लिख दिया था। और यहाँ पे कितने पार्ट्स एडेड है, 2 पार्ट्स एडेड है, और यहाँ पे 3 पार्ट्स एडेड है। तो 2/4 लेस देन 3/4, 2/4 ये छोटा है 3/4 से। सो दिस इज वी हैड लर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बी, नाउ लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन देना है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे है 2/5 और यहाँ पे 4/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 2 और 4 में से बड़ा क्या है, 4 बड़ा है। सो 2/5 इज लेस देन 4/5, 2/5 ये लेस है 4/5 से। देन क्वेश्चन नंबर 2, 1/9 5/9, 1/9 5/9। सो विच इज द नंबर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो विच इज द नंबर इज ग्रेटर, 5 इज द ग्रेटर। सो 1/9 इज लेस देन 1/5 इज लेस देन 5/9, 1/9 छोटा है 5/9 से। देन क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट हियर, 7/8 और 8/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो विच इज द नंबर ग्रेटर, 8। सो 7/8 इज लेस देन 8/8, 7/8 लेस देन 8/8। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2/7 3/7, क्या है, 2/7 और 3/7 है। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो विच इज द ग्रेटर नंबर, 3 इज द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/7 इज लेस देन 3/7, 2/7 ये छोटा है 3/7 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5 नंबर, 6/7 2/7, 6/7 2/7 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 और 2 में से बड़ा क्या है, 6 है, तो 6/7 इज ग्रेटर देन 2/7, 6/7 इज ग्रेटर देन 2/7। देन क्वेश्चन नंबर 6,
2/8 4/8, 2/8 4/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो विच इज द बिग नंबर 4. 2/4 लेस दैन 4/8, 2/8 लेस दैन 4/8, 2/4 ये छोटा है 4/8 से. देन क्वेश्चन नंबर 7. 7/9 8/9 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 और 8 में से बड़ा क्या है? 8 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/9 इज लेस दैन 8/9. 7/9 ये लेस है 8/9 से. देन क्वेश्चन नंबर 8. 3/5 2/5. नाउ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 और 5 में से बड़ा क्या है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 ग्रेटर दैन 2/5. 3/5 greater than 2/5. This is question number 8. Now look at question number 9. 5/6 1/6. 5/6 1/6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, so which is the number is greater? 5 number is greater, so 5/6 is greater than 1/6. 5/6 greater है 1/6 से. So this is example number 9. Now look at here example number 10. 1/8 3/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो विच इज द नंबर इज बिग? 3 इज द बिग. 1/8 इज लेस दैन 3/8. 1/8 ये छोटा है 3/8 से. देन 7/8 6/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो विच इज द नंबर इज ग्रेटर? 7/8 ग्रेटर दैन 6/8. 7/8 ग्रेटर दैन 6/8. देन क्वेश्चन नंबर 12. 2/10 1/10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, विच इज द ग्रेटर नंबर? 2. 2/8 ग्रेटर दैन 1/10. 2/10 ग्रेटर दैन 1/10. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 7/8 3/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, विच इज द ग्रेटर नंबर? 7. So 7/8 greater than 3/8. 7/8 greater than 3/8. Now question number 14. 6/8 5/8. 6/8 5/8. So denominator is the same both. So which is the big number? 6. Which is the number is 6. 6/8 greater than 5/8. Then question number 15. 1/5 3/5 both denominator is the same, so which is the number is greater? 3. So 1/5 is less than 3/5. 1/5 less than 3/5. Then question number 16. 5/7 3/7 both denominator is the same, so which is the number is greater? Which is the number is greater? 5/7 or 3/7? 5/7 is the greater. 5/7 greater than 3/7. Then next is the 4/11 3/11. So which is the greater number? Both denominator is the same. So which is the number is greater? 4. 4/11 greater than 3/11. Then next is the 5/11 4/11. So 11 both denominator is the same. So which is the number is greater? 5 और 4 में से बड़ा क्या है? 5 बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर का से. 5/11 greater than 4/11. 5/11 greater than 4/11. Then question number 19. 3/9 8/9 both denominator is the same. Both denominator is the same. So which is the number is greater? 8 number is greater. So 3/9 less than 8/9. 3/9 less है 8/9 से. Then question number 20. 5/8 3/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. So 5 और 3 में से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है. So 5/8 greater than 3/8. 5/8 greater than 3/8. Then question number 21. 4/10 4/10 4/10 दोनों भी सेम नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि बोथ आर द सेम. Then next is the 5/11 1/11 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
So which is the greater? 5 number is the greater. 5 by 11 greater than 7 by 1 by 11. 5 by 11 greater than 1 by 11. Then question number 23. 9 by 12, 8 by 12. 9 by 12, 8 by 12. Which is the greater? 12 both are the denominator same. Which is the greater number? From 9 and 8, 9 is the greater. So 9 by 12 is greater than 8 by 12. Then question number 14. 6 by 7, 4 by 7. 6 by 7, 4 by 7. Both denominator is the same. So which is the number is greater? Which is the number is greater from 6 and 4? 6 is the greater. So there is the 6 by 7 is greater than 4 by 7. 6 by 7 is greater than 4 by 7. So this is question number B. Which is the question? Question number B. In the question number C and D, which is the question? Question number C and D, there have a ascending order and descending order. So what is the ascending order? Ascending order means, what is the ascending order? हमें क्या करना है? छोटे से बड़े तक नंबर लिखना है, मीन्स स्मॉल टू ग्रेटर नंबर. एंड व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या करना है? बड़े से छोटे तक नंबर लिखना है. क्या करना है? बड़े से छोटे तक नंबर लिखना है. सो दिस इज डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर. वी विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड. कब करेंगे हम? हमारे नेक्स्ट वाले पीरियड में करेंगे क्वेश्चन नंबर सी एंड डी. एंड वन थिंग्स, अभी आपकी नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है. सो नेक्स्ट जो मैथ का पीरियड होगा आपका, उस 2 पीरियड होंगे नेक्स्ट वाले. मतलब एक सैटरडे को होगा और दूसरा मंडे को होगा. उस 2 दिन में आपकी फिर से रिवीजन लेने वाली हूँ लेसन नंबर 4 एंड 5. जो आपका लेसन नंबर फ्रैक्शन है वो आपके एग्ज़ाम के बाद मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगी. जो हमारा रिमेनिंग है, मतलब एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर सी और डी, ये जो रिमेनिंग है वो मैं आपके एग्ज़ाम के बाद फिर से स्टार्ट कर दूँगी. सो नेक्स्ट पीरियड में आपकी क्या लूँगी? रिवीजन लूँगी लेसन नंबर 4 एंड 5 की. एंड वन थिंग, जिन्होंने क्या नहीं किया है, प्रोजेक्ट अब तक सेंड नहीं किया है. व्हाट? प्रोजेक्ट जो मैंने दिया है आपको, जो जिसने सेंड नहीं किया है तो उनको सेंड करना है प्रोजेक्ट. ठीक है, जिन्होंने सेंड किया है उनको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रोजेक्ट सेंड नहीं किया है उनको प्रोजेक्ट सेंड करना है. सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड आवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.